Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Namaskar and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today being Sunday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. Well, you may call us on these numbers: 23314444, 23421050 and 23310464. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sparsh Saxena. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और हम आप सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम मार्केट मंत्र में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। आज की खबरों पर चर्चा करने और आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डांग। चलो, स्पर्श ने ठप्पा लगा दिया है कि ये सबका पसंदीदा प्रोग्राम है। Alright, let's begin with the headlines. Prime Minister Narendra Modi and Nigerian President Bola Ahmed Tinubu hold talks in Abuja to review strategic partnership. PM to travel to Brazil later this evening to attend G20 summit. India expresses dissatisfaction over developed countries' unwillingness on the climate finance and mitigation work talks at COP29. And domestic markets to focus on US, FIIs and rupee movement for Qs next week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने आज अबुजा में कार्यनीतिक भागीदारी की समीक्षा पर चर्चा की। प्रधानमंत्री आज G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील रवाना होंगे। भारत ने COP29 में जलवायु वित्त और न्यूनीकरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विकसित देशों की अनिच्छा पर असंतोष व्यक्त किया है और अमेरिका विदेशी निवेशक और रुपए की चाल कर सकती है अगले सप्ताह घरेलू बाजारों का रुख तय। Prime Minister Narendra Modi and Nigerian President Bola Ahmed Tinubu held talks at the presidential villa in Abuja today. Sharing his remarks during delegation-level talks with President Tinubu, Prime Minister Modi said India accords high priority to its strategic partnership with Nigeria. He cited defense, energy, technology, health, education and culture as areas of cooperation between India and Nigeria. He said India is sending 20 tons of humanitarian aid to support Nigeria in its flood relief efforts. He congratulated Nigeria for becoming a partner country of BRICS. Mr. Modi expressed confidence that India and Nigeria will bring issues affecting Global South in front of the rest of the world. PM Modi will travel to Brazilian city of Rio de Janeiro later in the evening on a 2-day trip to attend the G20 summit. India is part of the G20 Troika along with Brazil and South Africa and has been actively contributing to the ongoing G20 summit discussions. During the event, PM Modi will present India's positions on various global issues and build on the outcomes of the G20 New Delhi Leaders Declaration, as well as the voice of the Global South summits hosted by India in recent years. Mr. Modi is also expected to meet several leaders on the sidelines of the G20 summit. जी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिल्ली से योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछे अपना।
दरअसल सवाल ये है कि इक्विटी पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिया जाता है ये कितना जायज है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनीज अपने मुनाफे पे टैक्स दे चुकी होती हैं। दूसरा, ये हमारी उस इनकम से आता है जिससे हम ऑलरेडी इनकम टैक्स दे देते हैं। जी स्नेहा जी। जी, तो योगेश जी, आप जानना चाह रहे हैं कि जो टैक्स हम देते हैं जब कंपनीज ऑलरेडी दे चुकी हैं तो हम क्यों दे रहे हैं? अगर मैं आपका सवाल सही समझ रही हूँ तो एक्चुअली जैसे कंपनीज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिजनेस लाकर पार्टिसिपेट कर रही हैं, हम उस बिजनेस में से एक हिस्सा लेकर उसमें इन्वेस्ट करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जायज है कि जब आप मुनाफा कमाएंगे तो उस पर कुछ टैक्स तो हमें देना पड़ेगा। All right, we are now joined by Animesh, who's calling us all the way from Kolkata. जी Animesh जी, सवाल पूछें। Good evening, sir. Good evening, जी। I have two questions for you. First one is, how much a senior citizen can invest with a mutual fund to exempt tax? And the second question is it acceptable or it would be tax-free if anyone, say senior citizen or any person, invest with a mutual fund, will it be tax-free? Thank you, sir. जी, अनिमेश जी, जो आपने सवाल पूछा कि कोई लिमिट होती है अगर सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स सेव करने की इन म्यूचुअल फंड्स, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि म्यूचुअल फंड्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक टैक्स फ्री व्हीकल नहीं हो जाते हैं हमारे लिए। हम इक्विटी हो, डेट हो, हाइब्रिड हो, जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जब हमें मुनाफा होता है तो हमें टैक्स पे करना होता है। टैक्स सेव करने के लिए हमारे पास ELSS नाम के फंड्स होते हैं जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप टैक्स सेव कर पाते हैं अंडर द सेक्शन 80C जो ओल्ड रिजीम में रहता था। बट जहां तक आप जानना चाह रहे हैं कि ऐसे और कितने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के बियॉन्ड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स एक रहता है जो 60 एंड अबव जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स होती हैं जो आपको इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन देती हैं। यहाँ पर मैक्सिमम आप 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और आज के टाइम पे ये 8.2% रिटर्न भी दे रहे हैं। इनमें भी टैक्स बेनिफिट अप टू 1.5 लाख, जैसे मैंने इक्विटी फंड्स में ELSS बताया, उनके लिए होता है 80C में। बट सीनियर सिटीजन को बस एक ये ध्यान में रखना चाहिए कि माना कि आपको एक रेगुलर इनकम फ्रॉम एज सैलरी नहीं आ रही है, फिर भी इम्पोर्टेंट होता है कि जो फिक्स्ड इनकम टाइप की चीजें प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे SC/SS हो गया, उनके बियॉन्ड आप एटलीस्ट 1/3 ऑफ योर मनी जो सरप्लस होता है जिससे आप रेगुलर इनकम डिराइव करना चाह रहे हैं उसको इक्विटी में जरूर रखिए, क्योंकि लंबे समय में ये जरूर देखा गया है कि इक्विटी ही वैसी एसेट क्लास है जो लंबे समय में आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद कर सकती है, जिसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है स्पेशली इन रिटायरमेंट। I think the maximum limit earlier for deposition in post office was 15 lakh by senior citizens, that which was has been increased to increased to 30 in the 30 last budget. Absolutely. All right. And now we move on to Delhi. Yes, and Aris Daya is calling us from Delhi. जी दया जी, सवाल पूछें और अपने फोन की, अपने रेडियो की वॉल्यूम एकदम कम एक मिनट आपसे रिक्वेस्ट है, मैं मेरे फोन को डिस्कनेक्ट मत करना। अपने रेडियो की वॉल्यूम बहुत कम कीजिए दया जी, इको आ रहा है। जी जी जी, यस प्लीज। माय क्वेश्चन इज, जी जी जी, आई गॉट टू स्मॉल क्वेश्चंस। आई वांट टू नो फ्रॉम एक्सपर्ट दैट these two schemes, SBI Nifty Next 50 Index Fund and Bank of India Flexi Cap Fund, I've been investing in these two schemes for a period of 5 to 7 years. Well, that is one question. Are these good schemes to invest, or they are not as good performer? Second question is, I'm an old investor for 25-30 years, so I have got about 17-18 schemes in which money is invested. They are giving me return from say 13% to 20%. I want to bring it to about 4-5 schemes, but with the result I'll have to pay long-term capital gain on all the schemes I'll be redeeming. So what is your advice from the tax angle? जी स्नेहा जी। जी, तो आरिस दया जी, मैं पहले जो आपका सवाल था, दो स्कीम्स जो आपने बताई, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप, तो जहां तक SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात है,
ये जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, वो टॉप 50 होती हैं, उनका जो दूसरा भाग होता है वो नेक्स्ट 50 का रहता है, जो आपको एक एडेड डाइवर्सिफिकेशन दे देता है अगर आप सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये स्कीम्स अभी ETF और इंडेक्स फंड्स दोनों माध्यम से आप खरीद सकते हैं। आपने जिस भी माध्यम से खरीदे हो, ये बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। ये काफी चीप एक्सपेंस रेशो के साथ हैं। जैसे ETFs अभी 0.15 पर है, बट उसके लिए आपको डीमैट चाहिए होता है। तो अगर आप काफी समय से कर रहे हैं तो आई एम श्योर डीमैट तो रहेगा ही। और इंडेक्स फंड भी काफी चीप है, तो आप इनमें बने रह सकते हैं लार्ज कैप एक्सपोजर के लिए अपने पूरे पोर्टफोलियो में। जहां तक बात बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की है, तो ये इतना भी पुराना फंड नहीं है अभी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तकरीबन 4 साल हुए होंगे। ये अभी के समय में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। अगर आप इसमें अभी कर रहे हैं तो आप बने रह सकते हैं, बट इसने अभी जो मार्केट के उतार चढ़ाव है वो उतने ज्यादा नहीं देखे हैं, क्योंकि ये आया ही 2020 के समय पर है। तो उस टाइम से अभी तक हमने मार्केट बढ़ती हुई देखी है। तो जो अभी हम थोड़ी सी गिरावट देख रहे हैं, ये देखना काफी अच्छा रहेगा कि ये फंड इस समय में आपको कितना सपोर्ट दे पाता है, और अकॉर्डिंगली फिर हम जज कर सकते हैं कि ये वाले फंड में हमें कितना बने रहना चाहिए। जो दूसरा सवाल था कि अंडर परफॉर्मर्स हैं कुछ और आपको टैक्स लग सकता है रिडीम करने के लिए, मतलब अंडर परफॉर्मर्स नहीं, कुछ ज्यादा फंड्स है और आप कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, तो 2-3 जनरल अप्रोचेस आपको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। जैसे कि जो अंडर परफॉर्मिंग फंड्स हैं, जो लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में, आप उनको देख सकते हैं कि आप उनसे एग्जिट करें। जो फंड्स आपके पोर्टफोलियो में सेक्टर और थीमेटिक फंड्स हैं, आप उनको हटा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से, क्योंकि उनका रोल तब आता है जब वो सेक्टर परफॉर्म कर रहा होता है। और फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स में जैसे आप इन्वेस्टेड हैं, उनमें इन सब का कुछ ना कुछ एक्सपोजर रहता ही है, तो आप डिप्राइव नहीं हो रहे हैं ऐसे एक्सपोजर से। और तीसरा मैं ये बोलूंगी कि जिन फंड्स का आपके पोर्टफोलियो में हिस्सा 5% तक का है, उनको आप जरूर देखिएगा कि आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, इनसे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो आपको थोड़ा बहुत रिटर्न भी दे रहे हैं तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में वो उतना रोल ऑफ रिटर्न जनरेशन नहीं प्ले कर रहे होंगे, क्योंकि उनका एक्सपोजर ही कम है। जी। और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं केशव जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछे अपना। नमस्कार जी मैडम, नमस्कार। हमने अभी पिछले हफ्ते आकाशवाणी में एक आर्थिक सलाहकार आए थे, तो कार्यक्रम में उन्होंने काफी चीजें हमें बताई, जैसे काफी समझ में तो आई नहीं, क्योंकि मार्केट मंत्रा के जो प्रोग्राम होते हैं थोड़ा डिटेल में आप लोग बताते हैं। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने हमें ये बताया कि आप निफ्टी 50-50 इक्विटी ये आप फंड होते हैं, ऐसे होते हैं, तो जो नया कस्टमर है वो कैसे इसकी जानकारी समझे, कैसे क्या होता है, और म्यूचुअल फंड कितना सेफ है। वो कहते हैं म्यूचुअल फंड में आप शुरुआत में म्यूचुअल फंड में लगाइए, म्यूचुअल फंड का तरीका क्या है, कितना सेफ है। और एक लास्ट सवाल ये है कि ये गोल्ड के रेट जो ऊपर नीचे होते हैं, ये कहाँ से सेट होते हैं। इसके लिए आम आदमी तो या तो बैंक में जा सकता है ब्रांच FD के लिए, या फिर गोल्ड ही खरीद के ही इन्वेस्ट करता है। जी, केशव जी, आपके काफी सारे सवाल थे, मैं एक एक करके पिक करती हूँ। जो आपने एक सवाल पूछा कि म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं, तो म्यूचुअल फंड्स का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि काफी सारे आम हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं एक ही फंड में, और एक छोटा सा कॉस्ट देकर हम जो प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट होती है, जिन्होंने पूरी रिसर्च वगैरह जिनके पास रहती है, इसके माध्यम रहते हैं, उनको हम अपना पैसा दे सकते हैं और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं एक ही साथ वो पूरा अमाउंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज, कोई छोटी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी, और उस माध्यम से हमें हर सेक्टर, हर कंपनी का एक्सपोजर मिल जाता है। बट ये जो एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाती है, वो उसको एक डिजाइन, सेफ डिजाइन, रिलेटिवली सेफर डिजाइन प्रोवाइड करता है कि कभी भी कुछ हो जाता है अगर, तो ऐसा नहीं है कि आपको ही उसमें नुकसान होगा। बट हैविंग सेड दैट, एक और चीज रहती है कि म्यूचुअल फंड हर किसी को सेम तरीके का ट्रीटमेंट देंगे। कल अगर हम या कोई बहुत बड़े मान लीजिए HNIs जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, किसी को भी किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना है, तो हम सबके लिए एक ही प्राइस अवेलेबल होगा जिसमें हमने खरीदना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आज ये ले लिए तो इनको इस प्राइस पे मिल गया है। तो म्यूचुअल फंड्स एक इक्वलाइजर भी रहता है और एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि वो आप ही के बैंक अकाउंट से पैसे निकालेगा और आप ही के बैंक अकाउंट में वापस डालेगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई और दो राय ही नहीं है जब आप डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं।
और दूसरा सवाल इनका ये था गोल्ड के ऊपर। नहीं, दूसरा सवाल एक और था बीच का कि म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये नए इन्वेस्टर हैं तो इनको कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरू, क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाएं या बैंक के जरिए जाएं, वो पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आपका बैंक अकाउंट किसी एक ऑलरेडी अच्छे बैंक के साथ है तो आप बिल्कुल वहां से भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ये बैंक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्ले करते हैं। होता क्या है कि जब आप नए इन्वेस्टर होते हैं, हमें नॉलेज प्राप्त करते हुए भी किसी का हाथ पकड़ना होता है जो हमें एटलीस्ट जो स्टार्टिंग की जर्नी है उसमें मदद कर पाए। तो बैंक्स बिल्कुल वहां पे आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी आप एम्फी के माध्यम से, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया है, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी ये जान सकते हैं अपना पिन कोड डाल के कि आपके आसपास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। अब शुरुआती निवेशक को खुद नॉलेज प्राप्त करने के लिए आजकल अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह का यूज करते हैं, जो आजकल काफी लोग करते हैं, वहां से आप बिल्कुल सर्च करके आप वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन की वेबसाइट पर आ सकते हैं, वहां से भी आपको जानकारी मिल सकती है। एक नए इन्वेस्टर को एक टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्हें कहते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड, जो कि इंडेक्स फंड्स या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। आप इंडेक्स फंड समझ लीजिए जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इनमें क्या रहता है कि आप इन्वेस्ट करिए और आपको पहले ही पता होगा कि ये कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं ये। बाकी अग्रेसिव हाइब्रिड जैसी कैटेगरीज भी आप देख सकते हैं। ये मैं आपको बस इसलिए बता रही हूँ कि आप जब जिस डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट में आते हैं तो आपको भी पता हो कि किस टाइप का म्यूचुअल फंड आप देखना चाह रहे हैं, और आगे की मदद वो आपकी कर पाएंगे। जी। Well, considering the limitations of time, I think Sneha, you have been as comprehensive as you could be. We are now joined by Jitendra calling us from Jaipur. जी जितेंद्र जी, सवाल पूछें। हाँ मैडम, मैं पहले बैंक में और पोस्ट ऑफिस में ही इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन कोरोना काल से फिर म्यूचुअल फंड में भी, कुछ स्टॉक मार्केट में भी, और एनपीएस खोला। तो अभी मेरे रिटायरमेंट के 12-13 साल बाकी है, और मैं एसआईपी नहीं करता हूँ जब ऐसे मार्केट डाउन रहता, लेकिन कुछ ना कुछ ले ही लेता हूँ। तो कई फंड हो गए हैं, हालांकि आप सेक्टर फंड से मना करते हैं, उसके बावजूद मैंने लेके रख दिया, लेकिन एसआईपी किसी में नहीं करता। अब मेरा विचार फ्रेश है इस महीने से जैसे करने का, तो 10,000 रुपया ही मैं जमा कर सकता हूँ हर एक मंथ। तो एनपीएस भी है मेरे पास और मल्टी कैप फंड है, तो मेरे माइंड में एनपीएस है, मल्टी कैप फंड है और एक इंडेक्स फंड करते कंटिन्यू, बाकी को स्टॉप करके रखते हैं। आपके विचार इसमें कुछ व्यक्त करें। ठीक है जी। जितेंद्र जी, आपने जैसे बताया कि आप एसआईपी नहीं करते हैं, आप लमसम के थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं, विच मीन्स कि आपको जो स्टॉप करने वाली चीज है वो यहाँ पर लागू नहीं होती है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं। उनको सेल करना है नहीं करना है उसका एक अलग से हमको वो देखना होगा कि किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स आपके पास हैं। जहां तक एनपीएस की बात है, वहां पे तो लिमिट रहती है कि 60 साल की उम्र तक हम विड्रॉ कर नहीं सकते हैं। मैं आपको ये बोलूंगी कि जो आप कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं अपने 10,000 से, उसके लिए आपका चुनाव सही है, क्योंकि आप कुछ टाइम से कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस भी है। तो मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स आपको बेहद हेल्प कर सकते हैं। और एनपीएस में जारी रखने का भी जो आपका थॉट है वो काफी सही है, क्योंकि अब 12-13 साल रह गए और आप काफी टाइम से कर रहे हैं, तो इसमें बने रहना सही होगा। ये आपके रिटायरमेंट में काफी लो कॉस्ट इनकम आपको प्रोवाइड कर सकता है। और मेरा आपसे आग्रह है स्नेहा जी कि जैसा उन्होंने बताया कि 10-12 साल बचे हैं, तो तकरीबन इनकी उम्र 50 के आसपास कहीं होगी, तो रिस्क एलोकेशन क्या होना चाहिए इनके लिए? जी, जो एक रिस्क की बात हो जाती है वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। कई ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट 50 में भी ऑल इक्विटी का रहता है जी, बट जब नियरिंग टू रिटायरमेंट हो तब ऐसा जरूर रखना चाहिए कि थोड़ा सा पोर्शन डेट इन्वेस्टमेंट्स में रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो एक सेफ्टी और बिना वॉलेटिलिटी के आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, जहां से आप इनकम निकाल पाए, वो ऑप्शन रखना चाहिए जी। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं शिमला से, राकेश जी। राकेश जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछे अपना। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछे अपना जी। मेरा सवाल ये है कि मैं पहली बार इस म्यूचुअल फंड से जुड़ना चाहता हूँ और मैं एक ब्लाइंड भी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, क्या मैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा कर सकता हूँ? और मेरे पास जैसे पेंशन भी आती है, अगर पेंशन का पैसा अगर इसमें लगा दूँ तो मुझे इसमें क्या प्रावधान करना होगा? जी, राकेश जी, मैं आपको एक ये सुझाव देना चाहूंगी कि पेंशन के पैसे जो आपके पास आते हैं, अगर वो आपके
एक्सपेंसेस ऑफ द मंथ में ज़रूरी रहते हैं तो मैं इनको इन्वेस्ट करने का सुझाव नहीं दूंगी. मैं ये बोलना चाहूंगी कि जितना आपके एक्सपेंसेस में ये यूटिलाइज हो जाता है उसके बाद अगर कुछ सरप्लस बचता है तो वो आप जरूर सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने का. और यहाँ पर जैसे मैं पहले श्रोता को बता रही थी कि आप अपने बैंक्स के साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में. और आप कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस स्कीम्स भी क्या आपके लिए ऑप्शन रहती हैं, तो बिल्कुल वो भी रहती हैं. बात बस ये रहती है कि ये वाली स्कीम्स फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं. तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट उसमें कभी आगे जाकर जब थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, इक्विटी अपने पोर्टफोलियो में चाहेंगे तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा माध्यम रहेगा. All right, now we have Shankar online calling us from Bhopal. जी शंकर जी, सवाल पूछें. जी गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम. जी गुड इवनिंग. आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, हम लोगों को बहुत फायदा होता है. सो प्लीज कंटिन्यू विथ म्यूचुअल फंड एंड आल्सो कम अप विथ योर प्रोग्राम ऑन इनकम टैक्स Sunday for people who are from income tax department, so that a lot of queries can be answered. Madam, my question about mutual fund is why this large and mid cap category was created? Because there is a flexi cap, there is a multi cap, but why this large and mid cap category was created? It is doing very well. I have invested in some ICICI large and mid cap fund. And what is the reason for this? And how does it differ from the other multi cap or flexi cap fund? और दूसरा सवाल है कि अगर रिटायरमेंट के पास आ रहा हूँ मैं, तो क्या मैं बैलेंस एडवांटेज फंड में सारा पैसा अपना लगा दूं जिससे, और थोड़ा सा डेट फंड में रखूं, सो दैट ईयर 1 साल 2 साल का एक्सपेंस मेरा मीट हो जाए, बाकी फंड बढ़ता रहे और वॉलेटिलिटी ना हो. थैंक यू. जी शंकर जी, द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग व्हाई दिस लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी वाज क्रिएटेड, all I can say is that SEBI thought that of course there is a flexi cap category which is a go anywhere category, and now multi cap as well, which can invest across large, mid and small cap companies. But SEBI would have thought that there should be a category focused entirely on providing dominantly exposure being in large cap and mid cap, and leaving the rest of the 35% up to the fund manager. Your point is absolutely taken that there are different categories which provide you similar kind of exposures, but that is actually an outcome of how the market is. But even if you look at, let's say, large and mid or flexi cap category, there will be a time when their exposures won't align. Let's say flexi cap will be having a higher large cap allocation, but large and mid may not. So it is actually, I guess, SEBI's rule that we have to account for. And the fund that you mentioned, ICICI Pru Large and Mid, it's a pretty decent fund, has been doing good. So you may continue invest in that. The point that you made around investing your entire money in balance advantage funds, since these funds are very dynamic in terms of their asset allocation between equity and debt, I would say, of course, you should have some exposure in debt funds, some exposure in equity funds, but you may want to, look at how the asset allocation of your selected balance advantage fund is over a period of time, just to make sure that these are the kind of risk return outcomes that you can expect out of it, because the dynamism can actually may at some time may not align with your retirement goal. जी, और हैदराबाद से हमारे साथ सौरभ जुड़े हुए हैं. सौरभ जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में. प्लीज सवाल पूछे अपना. हेलो जी, नमस्कार. Market Mantra, good evening. I'm Saurabh from Hyderabad. जी. I just want to share and then share my experience. My son, who is going to hostel, will be 18 in January. So this vacation, when he came, I had told him about the investment. So luckily he has agreed. So he said that he will spare some part of his pocket money, and I will give the double the amount. Say the amount comes to about 2,000 rupees a month. For an 18-year-old child, thinking long term, how should I invest in NPS? जी, Okay. शायद वो पूछना चाह रहे थे कि 18 साल का बच्चा है तो उसके लिए 2,000 रुपए किस जगह इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा. राइट. सो म्यूचुअल फंड डोमेन में मुझे लगता है 18 साल के हैं वो, तो वो कुछ लार्ज, कुछ मिड, कुछ स्मॉल का एक्सपोजर रख सकते हैं. तो ऐसे में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी काफी अच्छी रह सकती है. आप HDFC फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स देख सकते हैं. इनमें थोड़ा सा ज्यादा लार्ज कैप का एक्सपोजर रह रहा है आजकल, क्योंकि ये फंड्स थोड़े से बड़े हो गए हैं. अगर आप इसी फॉर्म में थोड़ा सा
रिस्क ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि ये एक 18 ईयर ओल्ड के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप मल्टी कैप जैसी कैटेगरी भी देख सकते हैं जहां पे स्मॉल कैप की एलोकेशन और मिड कैप की एलोकेशन 25 फिक्स्ड रहती है। वहां पे भी मैं आपको 2-3 फंड्स का सुझाव दे सकती हूँ, जैसे आईसीआईसीआई का मल्टी कैप, कोटक का मल्टी कैप या फिर निपॉन का मल्टी कैप। ये फंड्स काफी अच्छे रह सकते हैं। All right, that was a lot on mutual funds. Let's move on. India expressed dissatisfaction on unwillingness by developed countries to engage on climate finance and mitigation work program at COP29 at Baku in Azerbaijan. The country delivered a statement closing plenary of the subsidiary bodies on the agenda on Sharm el-Sheikh mitigation ambition and implementation work program MWP. Yesterday, the developed countries had asked for including mitigation paras from global stocktake at COP28 into the MWP, which is contrary to what was agreed in the past. India expressed serious concern about the progress the COP29 made during the week. In a statement, India noted that no progress has been witnessed in matters that are critical for developing countries. The statement further read that developing countries are facing some of the worst impacts of climate change for which they are not responsible. These countries possess a lower capacity to recover from those impacts and to adapt to the changes to climatic system. India has raised concern that those with the highest capacity to take climate action have continuously shifted goalposts, delayed climate action, and consumed a highly disproportionate share of global carbon budget. जी, और अगले सप्ताह बाजार कैसे रह सकते हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पिछले कुछ हफ्तों की नरमी के बाद घरेलू बाजारों की एक सीमित दायरे में रहने की संभावना है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कारण बाजार बंद रहेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणाएं, एफआईआई का रुख, डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड कर सकते हैं बाजार का रुख तय। स्नेहा जी, आपसे एक सवाल है कि हमारे कई सारे श्रोताओं का भी ये सवाल रहा है। मान लीजिए हमने एक समय पर अगर कोई म्यूचुअल फंड चूज किया और जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी, फॉर एग्जांपल मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो अगर वो रेटिंग तब तो अच्छी थी जब हमने लिया, बट उसके बाद अगर वो गिर जाती तो क्या करना चाहिए? उससे एग्जिट करना चाहिए या फिर उसमें बने रहना चाहिए? क्या सलाह आपकी रहेगी? जी, सो रेटिंग्स के बेसिस पर हम अपना एक सोल डिसीजन नहीं हमें उस पर करना चाहिए। रेटिंग्स कैन बी वन फैक्टर टू कंसिडर जब हम फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। जो फंड इन क्वेश्चन है मिरर एसेट लार्ज एंड मिड, ये फंड कुछ समय से नहीं अच्छा कर रहा है, बट हम ये नहीं भूल सकते हैं कि यही फंड वो वाला फंड है जिसका जो लंबे समय में प्रदर्शन रहा है वो काफी ज्यादा क्लीन रहा है। इसने हर समय में आउट परफॉर्म करा है अपने बेंचमार्क को, अपने पेयर्स को। स्पेसिफिकली इस फंड के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि अगर कोई इन्वेस्टेड है तो वो अभी बने रहें, क्योंकि फंड मैनेजमेंट थोड़े बहुत ट्वीक्स कर रही है उसकी परफॉर्मेंस को वापस लाने के लिए। बट रेटिंग के लिए आप जब हम इन्वेस्ट करते हैं और वो हाई था और उसके बाद वो नीचे हो गया, तो एक्चुअली बेस्ट फंड्स गो थ्रू फेजेस ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, और अगर वो आपका गोल मीट अभी भी करवा रहा है तो मैं बोलूंगी कि आप उसमें बने रहिए। हाँ, ये जरूर मैं बोलूंगी जब वो रेटिंग 1 या 2 पर हो जाती है तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए कि ये फंड अभी भी सूटेबल रहेगा या नहीं आपके गोल को, और अगर नहीं तो फिर डेफिनेटली आपको अपने दूसरे ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए। I look at the oil prices. Well, Brent crude oil futures fell around 4% this week to end at $71.04 a barrel on Friday. US dipped 5% to $67.02. US President-elect Donald Trump has pledged to end China's most favored nation's trading status and impose heavy tariffs on Chinese imports. और स्नेहा जी, शॉर्ट कमेंट आपका अगले सप्ताह बाजार के लिए। जी, बाजार के उतार चढ़ाव में बोलूंगी चलते रहेंगे। तो एफआईआईज के आउटफ्लोज हो रहे हैं, यूएस में भी काफी हलचल चल रही है, तो उस सब का पर्सपेक्टिव जरूर होना चाहिए, बट अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ उस पर बेस नहीं करनी चाहिए। और अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। स्नेहा जी, कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। और अंत में अंग्रेजी में हेडलाइंस एक बार फिर। Yes, here we go. Prime Minister Narendra Modi and Nigerian President Bola Ahmed Tinubu hold talks in Abuja to review strategic partnership. PM to travel to Brazil later this evening to attend G20 summit. India expresses dissatisfaction over developed countries' unwillingness on climate finance and mitigation work talks at COP29, and domestic markets to focus on US, FIIs and rupee movement for cues next week. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Sparsh Saxena, signing off. Namaskar. Namaskar.